Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Today we are entering in new mega chapter, that is chapter 6, and is known as application of derivative, also called AOD. याद रखना. Now application of derivatives में there are total 7 applications in our chapter. उसमें से एक हमने कंप्लीट कर दी, दैट वाज रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम इन द डिफरेंशिएशन. इट इज ऑलरेडी डन. एक कंप्लीट हो गई जो इन प्रीवियस कोर्स इट वाज इन एओडी, बट राइट नाउ हमारे सिलेबस में वो डिफरेंशिएशन में रखा हुआ है. नाउ देयर आर मोर 6 एप्लीकेशंस. आउट ऑफ देम one is rate of change of quantities. For the rate of change of quantities we should have some formulae. सारी फॉर्मूले आप टिल 10th पढ़ के आए हो, पर फिर भी मैं आज पूरी ज्योमेट्री की जितनी भी फॉर्मूले है रिगार्डिंग टू एरिया एंड वॉल्यूम वो आज वापस मैं आपको समझा रहा हूं, करवा रहा हूं, याद करनी है. उसी पर डिपेंडेंट पूरी एक्सरसाइज 6.1 है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. मींस रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन रेट ऑफ चेंज also we can say. So let me start for the formula. First is area of square. Area square, that is A is equal to L square. You know the figure of square. Square सबको पता है कि square square होता है, and this all four sides are called sides of the square. जो उसका क्लोजर पार्ट है, बाउंडेड पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एरिया. और जो सराउंडिंग पार्ट है मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड perimeter. And remember it, square has 4 sides and all 4 sides are equal, so the formula will be second one, perimeter of square P is equal to 4L. You know this. Now for rectangle, second one, third formula, area of rectangle, that is A is equal to length into breadth, that is A into length into breadth. It is our old is gold rectangle. This bounded part is called area of this rectangle. It has also 4 sides, but not 4 sides are equal. They have different measurements. So ये जो surrounding part है, this borders, उसकी जो length होगी that is called perimeter. So perimeter of rectangle P is equal to, see it is L, length, breadth, L plus B plus L plus B, 2 times L plus 2 times B, 2 common लिया, so it will be 2 times L plus B. This is called perimeter of rectangle. Now for triangle, fifth one, area of triangle, that is A is equal to 1 by 2 base into height, or you can say base into altitude.
if it is triangle, so it is called base, it is called height or altitude. So 1 by 2 base into altitude. And if we have, suppose it is triangle ABC, this side is called small a because it is in front of A, opposite side of A, opposite side of B is B, opposite C of C is C. So small c denotes the length of side, capital C denotes the angle. Suppose it is angle A. So the formula for area, it is another formula by trigonometry. 1 by 2 BC sin A, BC sin A. साइन को वही एंगल देना है जो बी और सी से फॉर्म्ड है. अगर मैंने सी ए लिखा देन वी विल राइट साइन बी, अगर मैंने ए बी लिखा देन वी विल राइट साइन सी. वी कैन चेंज. सो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दो फॉर्मूले है हमारे पास, 1 by 2 बेस इनटू हाइट और 1 by 2 BC sin A, right? After that, for the circle, sixth one, area of circle A is pi r square. It is a circle. It is a circle. It is called center, and this length is called radius, and this bounded part is called area of the circle, and the surrounding part जो यहाँ से स्टार्ट होगा, बॉर्डर पार्ट, फेंसिंग पार्ट, और सो वी कैन से ये जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल. सो सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल, सेवेंथ फॉर्मूला, circumference of circle P is equal to 2 pi r. Circumference of circle P is equal to 2 pi r. If we have semicircle like this, see, और ये मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे सर्कमफियरेंस होगी हाफ मीन्स पाई आर, बट ये जो डायमीटर है वो भी ऐड होगा, दिस प्लस दिस 2 times r. सो वी विल राइट सर्कमफियरेंस ऑफ semicircle is equal to pi r plus 2r. Pi r plus 2r. So, the circumference of semicircle will be pi r plus 2r. So, square, rectangle, triangle, circle, all these are in 2-dimensional. Now we are going to start the 3-dimensional figures. जो 3 dimension में आएगा, like cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, ये सभी की बात चलेगी. तो ये 2-dimensional जितनी भी डायग्राम थी यहाँ पे हमारी खत्म हो रही है. Now we'll start 3-dimensional, means we'll start from the cube. Volume of cube, 9th one. Volume of cube, B is equal to L cube. Volume of cube is B is equal to L cube. क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब को 6 साइड्स होती है, नहीं 6 सरफेसेस होती है, एंड ऑल सरफेसेस
इक्वल होती है। यू नो दिस, केमिस्ट्री वालों ने आपको समझाया होगा। दिस इज अवर क्यूब, this is our cube, so it has 6 sides and all 6 sides are equal. So the part or the area, the we can say the space bounded by this cube is called the volume, and it has 6 sides. All six sides, length of all 6 sides are equal. L 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 L, राइट। तो वॉल्यूम की बात तो यहां पे खत्म हो गई। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 10th, surface area of cube S is equal to, see it has 6 sides and all 6 sides have same area. The area of one side is L square and it has 6 sides, so the surface area of cube will be 6L square. The surface area of cube will be 6L square. Now volume of cuboid, volume of cuboid, V is equal to length into breadth into height. Because cuboid means if the length of any side change, the cube will be cuboid like this. आपको बताइए, suppose it is cuboid. राइट, उसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट सरफेस है, वो सेम रहेगी। इट हैज 6 साइड्स, ये और इक्वल, ऊपर नीचे इक्वल, आगे पीछे इक्वल। सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द cuboid. Now surface area of cuboid, same here, 12 surface area of cuboid S is equal to, see, area of these two sides, area of these two sides and the area of these two sides. So it will be 2LB plus 2BH plus 2LH, 2 times LB plus BH plus LH. Getting or not? So this will be surface area of cuboid. Getting or not? Now for the sphere, see it is a sphere. Sphere is 3-dimensional, तो उसे बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इमेज वी कैन मेक, बना नहीं सकते बट इमेज बना सकते हैं। सपोज इट इज अ स्फीयर, इट इज अ सेंटर, राइट, दिस इज होल स्फीयर। और ये जो ब्लू पार्ट में बनाऊंगा दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, मतलब आधा स्फीयर। दिस ब्लू पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। और ये जो ब्लैक पार्ट होगा दैट विल बी द सराउंडिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो नाउ volume of sphere, first it is called radius of the sphere, volume means bounded part, so 13th
volume of sphere V is equal to 4 pi r square, 4 by 3 pi r cube, sorry, volume of sphere. Now the curved surface area or surface area, because sphere has total curved surface area. कोई भी उसका जो पार्ट है, कोई भी उसकी जो सरफेस है वो प्लेन फॉर्म में नहीं है. सो होल पार्ट, होल सरफेस इज कर्व्ड सरफेस. सो वी कैन से सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सॉरी स्फीयर. 14 कर्व्ड सरफेस एरिया of sphere S is equal to 4 pi r square. Curved surface area of sphere is 4 pi r square. Now volume of hemisphere 15. Volume of hemisphere V is equal to, इससे आधा होगा 2 by 3 pi r cube. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब समझना बराबर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर S is equal to, now see, surface area of sphere is 4 pi r square. So उसका जो हाफ पार्ट होगा ये होगा. अब यहां पे ये जो प्लेन वाला पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, दैट विल बी एडेड. सो जो हाफ सरफेस एरिया वो तो आएगा, कर्व सरफेस एरिया वो तो आएगा, प्लस दिस प्लेन पार्ट विल बी देयर. सो इट इज कॉल्ड, ये 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही, और ऊपर जो सर्कल बना दैट इज प्लेन पार्ट इज आल्सो एडेड, मींस पाई आर स्क्वायर. सो फाइनल आंसर विल बी 3 pi r square. So volume of sphere, curved surface area of sphere, volume of hemisphere, total surface area of hemisphere, ये हो गया. Now we have two parts, two parameters, cylinder and cone, right? So cylinder के लिए बात करेंगे हम. Volume of cylinder, cylinder कैसा हो वो भी देखना है हमें. चलो फिर नंबर 17, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. V is equal to पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर को आप जानते हो और सिलेंडर आपको भी जानता है. दिस इज our old is gold cylinder. This is bottom part, this is top part, this surface is called curved surface. It is also known as right circular cylinder. It is also known as right circular cylinder क्योंकि यहां से जो एक्सिस निकलेगी that will be perpendicular to the bottom circle of the bottom. मतलब दोनों सर्कल को परपेंडिकुलर है. अगर मैं ऐसा सिलेंडर बना रहा हूं लाइक दिस, तो ये जो एक्सिस में टच करूंगा वो ऊपर या नीचे वाले सर्कल में से किसी को भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा. सो इट इज नॉट कॉल्ड द राइट सर्कुलर सिलेंडर. दिस सिलेंडर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड इन आवर सिलेबस only the right circular cylinder is there, right? So this is called right circular cylinder.
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व पार्ट लेना है हमें सिर्फ, कर्व्ड सरफेस एरिया of cylinder is S is equal to 2 pi r h. Now surface area of cylinder, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा हूं तो टॉप और बॉटम वाला पार्ट नहीं आएगा, बट व्हेन आई से सरफेस एरिया एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड द सर्कल व्हिच इज इन द बॉटम, एंड व्हेन वी से क्लोज टोटल सरफेस एरिया आपको लिखना है ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू बुक. सरफेस एरिया लिखूंगा एट दैट टाइम एट द बॉटम, व्हेन वी राइट टोटल सरफेस एरिया आपको ऊपर वाले पार्ट को भी ऐड करना है. क्लोज्ड या टोटल बोथ यू कैन से. कर्व्ड में सिर्फ ऊपर नीचे वाला नहीं आएगा, सरफेस एरिया में सिर्फ बॉटम लेनी है अकॉर्डिंग टू बुक, और टोटल और क्लोज में ऊपर नीचे वाला पार्ट लेना है, रिमेंबरिंग. सो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया. नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 19 ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, मतलब कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही 2 पाई आर एच प्लस बॉटम में जो सर्कल है उसका भी एरिया आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. नाउ टोटल सरफेस एरिया और क्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू बुक इट इज गिवन द टोटल सरफेस एरिया, बट क्लोज वर्ड इज ऑल्सो हो सकता है, राइट. So 20th total surface area of cylinder or surface area of closed cylinder S इज इक्वल टू, देखो कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस बॉटम और टॉप वाले सर्कल्स भी आएंगे, मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मींस 2 पाई आर स्क्वायर. यहां से 2 पाई आर एच कॉमन निकलेगा इक्वल टू 2 पाई आर कॉमन निकला, बचा एच प्लस आर. सो दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बुक, राइट. सो सिलेंडर यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात यहाँ पे खत्म हो रही है, और लास्ट हमारा जो आएगा डायग्राम दैट इज कोन, राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन किसे कहेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोन की कैसी बात है, स्टोरी क्या है. सी इट इज राइट सर्कुलर कोन, इट इज अवर Why it is called right circular cone? क्योंकि ये जो एक्सिस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल विच इज इन द बॉटम. अगर ये बॉटम को परपेंडिकुलर है देन दिस कोन इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, लाइक कैप ऑफ जोकर, लाइक दिस, तो ऐसा होगा जो आप पहनते हो, राइट. सो लाइक कैप ऑफ जोकर, तो उसे हम राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे, याद रखना. क्लियर. चलो फिर से थोड़ा सा और अभी हो गया. हाँ, it is called right circular cone, right. This side is called slant height. L is slant height, L is called slant height. H is called height of the cone,
R is radius of circle which is in base, and this is called semi-vertical angle. This is called semi-vertical angle theta. Semi-vertical angle. It is called height. It is called slant height. L is slant height. And it is called semi-vertical angle. If theta is semi-vertical angle, then 2 theta will be vertical angle. ये भी आपको याद रखना है. Clear point. Now see, for the right circular cone, in our syllabus there is right circular cone. So volume of cone 21. Volume of V is equal to 1 by 3 pi r square h. 22nd. Curved surface area of cone. Curved surface area मतलब जो बेस वाला सर्कुलर पार्ट है, that will not be inside. So curved surface area of cone. S is equal to pi r l. Now there is relation between L, R and H. See, these three sides are making right angle triangle. By these three sides we can say L square is equal to R square plus H square. Therefore L will be under root R square plus H square. मतलब आप इन तीनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना हो तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन एलिमिनेट. एल के बदले आप टिकाओ रूट है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर के बदले रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऐसे कर किसी को भी सब्जेक्ट बनाओ एंड यू कैन एलिमिनेट द वन टर्म, राइट. सो एस इज इक्वल टू पाई आर एल, एल इज ये भी आप ले सकते हो. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एस इज दिस. नाउ 23. Total surface area of cone. S is equal to the curved surface area means pi RL plus the circle which is in the bottom and the area of circle, that is we know that pi r square. So after taking pi r common, it will be L plus R. So इतनी फॉर्मूले आपको याद करनी है, राइट. विदाउट दिस फॉर्मूले आप 6.1 कंप्लीट नहीं कर सकते because all these formulas are very important for the exercise 6.1, which is based on rate of change in quantities. Rate of change of the quantities याद रखना. So please write down this. Now see the first application, the rate of change of quantities. So कैसे याद रखेंगे इसे? See, dy by dx. What is the meaning of dy by dx? There are total 7 rules of dy by dx. मतलब total 7 applications we have of dy by dx. All the applications are known as application of derivative. AOD भी याद रखना, आप ये चैप्टर को AOD भी बोल सकते हो. So rate of change of quantities मतलब किसी एक डायमेंशन में चेंजेस लाने से रिगार्डिंग टू दैट अगर दूसरे डायमेंशंस में भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो रिस्पेक्टिव हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आएंगे वो ये एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे.
right? So the meaning of dy by dx is what? Rate of change in y, rate change in y with respect to x. The meaning of dy by dx is that rate of change in y with respect to x. If we have dA by dt, if we have dA by dt, it means that rate of change in area with respect to time, rate of change in area with respect to time, मतलब ऊपर वाली जो टर्म है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू जो नीचे वाली टर्म है उसमें, बस इतना याद रखना है आपको. इफ वी हैव dv by dr, if we have dv by dr, then it will be rate of change in volume with respect to radius, with respect to its radius. So these are the notation for the rate of change of the quantities. तो सम में क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि इन क्वेश्चन किसी एक डायमेंशन, किसी एक टर्म में रेट ऑफ चेंज दिया होगा, उसके रिगार्डिंग दूसरी टर्म में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है. जैसे रेडियस में रेट ऑफ चेंज दिया है, एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है, देन देयर शुड बी फॉर्मूला कि जिसमें एरिया और रेडियस के बीच में रिलेशन हो. देयर शुड बी फॉर्मूला इन विच द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेडियस. अगर ये रिलेशन वाली फॉर्मूला आपको नहीं आती तो आप सब नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मैंने इतनी सारी आपको फॉर्मूले दे रखी, राइट. देखो अगर मैंने ऐसा किया, यहाँ पे सी वी हैव अ रेक्टेंगल, it is its breadth, it is length, and at that time t the area is a. But now see, the length of this rectangle is increasing by 0.001 centimeter per second. So in every second the length is increasing by 0.001 centimeter. After that second it will be this, after that second it will be this, after that second it will be this. So every time the volume, sorry, the area will be changed regarding to its side. तो ये जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग एरिया में जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा. सर ये रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या लगा रहे हो. तो चलो एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं कि अगर लेंथ या ब्रेथ डिक्रीज या इंक्रीज होगी तो रिगार्डिंग दैट एरिया भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा. दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज. बट एक और सिंपल इलस्ट्रेशन, भाई हमारे घर में, सबके घर में बकेट तो होगी, बाल्टी आप जानते हो, राइट. ऐसी बाल्टी होती है बकेट, ये उसका हैंडल है. अब जब हम इसे नल के नीचे रखेंगे, व्हेन वी पुट इट इन द टैप, पानी चालू कर दिया, नल में से पानी आ रहा है, विथ कांस्टेंट रेट द वाटर इज कमिंग, राइट. यहां से पानी गिर रहा है. अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, इट इज सिलेंड्रिकल कोन. सिलेंडर भी टाइप लग रहा है, कोन टाइप भी लग रहा है. जैसे नीचे जाएंगे द वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट विल बी डिक्रीज, क्योंकि नीचे वाला पार्ट नैरो हो रहा है, वो नैरो हो रहा है, क्लोज हो रहा है. तो यहां पे वॉल्यूम कम है. जैसे ही पानी यहां पे गिर रहा है, अब यूनिक रेट से, यूनिफॉर्म रेट से पानी गिर रहा है, नल में से जो पानी आ रहा है वो, तो ये जो पार्ट है वो जल्दी बढ़ जाएगा बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज लेस. बट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बकेट का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, सो इसकी जो हाइट बढ़ने का टाइम है दैट विल बी डिक्रीज. यहां पे फास्ट होगा,
तो आपने देखा होगा जैसे आपने बाल्टी भरने रख दी तो फटाफट आधी तो भर गई, अब सोच रहे हो कि फटाफट हो जाए, पर वो धीरे धीरे भरेगी क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो उसकी जो सरफेस है ऊपर आने की वो स्लो हो जाएगी। सो एवरी टाइम द रेट ऑफ चेंज टू इंक्रीज द हाइट वो स्लो हो जाएगी। यहाँ पे फास्ट है, फिर स्मॉलर 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 स्मॉलर, सबसे स्मॉल कम टाइम में यहाँ पे सॉरी सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड, जब इतनी हाइट है तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट, इतनी हाइट है, इतनी हाइट पे फास्ट है, फिर स्लो होगा, फिर और स्लो, फिर और स्लो, फिर और स्लो, फिर और स्लो। सो एवरी टाइम द रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो पानी है उसकी कम होती जाएगी। तो यही बात बता रहा हूं मैं कि एक टर्म में अगर चेंजेस लाने से दूसरी टर्म में रेट ऑफ चेंज एवरी टाइम अलग अलग होता है। जब ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ तो अलग था, सेकेंड टाइम में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब चेंज होता जाएगा। जैसे ही उसका एरिया बढ़ता जाएगा रेट ऑफ चेंज या तो ज्यादा या तो कम होता जाएगा। यही हमारी स्टडी है कि किसी एक टर्म के इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसकी इफेक्ट दूसरी टर्म पे क्या आ रही है, दैट इज अवर स्टडी। और वो स्टडी होगी हमारी डिफरेंशिएशन से, तभी तो ये चैप्टर को नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। Now see in this type of questions what you have to do. First of all you should have book. बुक लेके बैठना है क्योंकि इस टाइप की एक्सरसाइज में बहुत सारे लंबे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो आज मैंने लिखा है बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम रिमेम्बर इट कि जैसे ही आप लेक्चर देखने बैठते हो देन देयर शुड बी ए बुक विथ यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। एरिया में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है ऑफ अ सर्कल, सर्कल है हमारे पास, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो देखो एरिया लाना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, देन देयर शुड बी ए फॉर्मूला इन विच द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। एरिया और रेडियस में रिलेशन हो ऐसी फॉर्मूला हमारे पास होनी चाहिए। सो सपोज द एट टाइम t, अब यहाँ पे टाइम नहीं है, सो सपोज एरिया ऑफ सर्कल इज a एंड रेडियस इज r। एरिया ऑफ सर्कल is a and radius is r. Now a is equal to pi r square because we have a circle and area of circle a is pi r square. Now we want to find the rate of change in area with respect to radius. So differentiating with respect to r, differentiating with respect to r, therefore dA by dr is equal to 2 pi r. dA by dr is 2 pi r into dr by dr, but dr by dr will be 1. So when r is 3 centimeter and r is 4 centimeter, now a dA by dr when r is equal to 3 equal to 2 pi into 3 equal to 6 pi centimeter, because it will be centimeter square per centimeter mean centimeter. Second one is dA by dr when r is 4 equal to 2 pi into 4 equal to 8 pi centimeter square per centimeter. So इस टाइप के सम्स, ये तो बहुत ही इजी था, अभी थोड़े असली अदा वाले सम स्टार्ट होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में अटैक करना है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो वॉल्यूम इज increasing by rate of
8 centimeter cube per second. 8 centimeter cube per second, so it is with respect to time. ये टर्म से ही हमें पता चलता है, यूनिट से पता चलता है. सो चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज सपोज अभी देखो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? सपोज एट टाइम t the volume of Q is V, length of H is L, and surface area is S. ये हमें सपोज करना है. एट टाइम टी, एवरी टाइम ऑल द पैरामीटर्स आर चेंजिंग. लेंथ चेंज होगी, लेंथ ऑफ एज चेंज होगी, उसकी सरफेस एरिया चेंज होगी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एवरी टाइम, एवरी सेकंड. तो सब कुछ चेंज होगा. सो सपोज एट टाइम टी हमने फोटो खींच लिया कोई एक मोमेंट पे, एट दैट टाइम इट्स वॉल्यूम इज V, its length of edge is L, and the surface area is S. Right? Now dV by dt is given, that is 8 centimeter cube per second, and the question is what? Find the how fast is the surface area increasing. So हमें ds by dt लाना है, but direct we don't have formula कि जिसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बीच में रिलेशन हो. वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला इन विच देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक ये क्यूब की बात है, हमारे पास वॉल्यूम और लेंथ ऑफ एड्स के बीच में रिलेशन है. जैसे V is equal to L cube, so we can find dV by dt. So differentiating with respect to t, it will be dV by dt equal to 3L square into dl by dt. Getting or not? dV by dt is given, that is 8 equal to 3 into L. When length of edge is 12 centimeter is also given, so 12 square into dl by dt. So 8 upon 3 into 12 into 12 is dl by dt. 4 2s are 4 3s are and 2 6s are 12. So 3 3s are 9, 6s are 54. So 1 by 54 equal to dl by dt. इसका यूनिट होगा, dl by dt means सेंटीमीटर पर सेकेंड. 4 2s are and 4 3s are and 2 6s are 12, right? So 6 3s are 18, 3s are 54. So 1 by 54 centimeter per second. This is rate of change in length of edge, जो कि मांगा नहीं है, मांगा हुआ है ds by dt. So we have formula कि जिसमें सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ एज के बीच में रिलेशन हो. We know this S is equal to 6L square. So differentiating with respect to t, ds by dt is equal to 12L into dl by dt equal to 12. L is also 12. dl by dt 1 by 54. आप यहां से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. You will get the answer. Getting or not? Now see the last sum. आराम आराम से पढ़ो. The radius of a circle, सर्कल दिया हुआ है हमें, तो सर्कल की सारी फॉर्मूला आएगी. या तो एरिया आ सकता है, या तो सर्कमफियरेंस आ सकता है, या तो सर्कमफियरेंस ऑफ सेमी सर्कल आ सकता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ सकता है. So the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second.
तो देखो पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात चल रही है. सो सपोज एट टाइम t, the radius of circle is r. उसके बाद में एरिया की बात हुई है. एरिया ऑफ सर्कल is a. Now radius of a circle is increasing uniformly, means constantly at the rate of 3 centimeter per second. So dr by dt is 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when radius is 10 centimeter. So we have to find dA by dt, rate of change in area. So there should be formula in which the relation between radius and area. So we know this, A is equal to pi r square. Differentiating with respect to t, so LHS will be dA by dt equal to 2 pi r into dr by dt. डिफरेंशिएशन सब में इजी आएगा. पाई इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r और r का dr by dt because it is with respect to t. Everything we have, see 2 pi, r is 10 centimeter. dr by dt is also given, that is 3 centimeter per second. So 3 to the 6 10 are 60, 60 pi centimeter square per second. 60 pi centimeter square per second. Clear? तो आज मैं यहाँ पे आपको 3 सम्स करवा रहा हूँ. From the next time we will start remaining sum, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. पर इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है because it is lion of the 12th. बिल्कुल याद रखना ये चैप्टर को. इतना इजी नहीं, सारे सम 4 5 6 स्टेप्स में हो जाएंगे, पर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए वो अगर नहीं है तो डिफिकल्ट है, और है तो इसके जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई नहीं है, याद रखना. ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.